Suppose if we throw this pen in the air like this, it comes due to the attraction of earth to our hands. अगर इस पेन को हम ऊपर फेंकेंगे तो it will come to our hand due to the gravitational attraction of force. Can you say me what are the equations of its motions will be? Anyone? No? Yes. It is a type of vertical motion. Today in this lecture, that is in lecture number 3 of kinematics, one-dimensional motion, we are going to learn that topics. It's me, Ayon. I welcome you all to Dramatic Science. Let's start today's session. So in our today's session, we have all these 3 topics. Number 1 is graphical proofs of the equations of motion. Number 2, calculus proof. That means we will prove the equation of motion on the basis of calculus, that is differentiation and integration, that I have written the formula in lecture 1. And vertical motion, the motion of this pen, right? So let's start with our first topic, that is graphical proofs of equations of motion. Here we have our first graphical proof. This one is the graph that we will consider. I think you know this graph. This was in lecture 2, basically a graph of constant acceleration. This one is the velocity axis, this one time axis. A particle is initially starting from A and it reaches to B. That means its initial velocity is O to A, that is U, and final velocity is एक dot dot line B के पास से, that is OE, that is V is its final velocity. Okay. अच्छा, B तक पहुंचने के लिए कितना time? OD, that is small t is the required time. So for a particle in uniform acceleration, that means here acceleration will be constant, right? Initial velocity, that is OA, is U. Final velocity OE, that is V. Required time, as I said, OD means T. Acceleration, that is small a, that is not in the graph, which is constant, and displacement भी graph में नहीं है, that is S. Displacement को बाद में discuss करेंगे. First proof, V equal to U plus AT. So acceleration का definition क्या है? Velocity increased by required time. Simple. Velocity increased by time, that is कितना velocity increase हुआ? U था, V हुआ. कितना increase हुआ? V minus U. Simple math. So V minus U by time is T. T को उस तरफ भेज दिया. So AT equals to V minus U. U को उस तरफ भेज दिया. This one. V equal to U plus AT. Simple. ये एग्जाम में नहीं आएगा. Sure. अच्छा, note. Here slope. Slope means can be written as tan theta. इस एंगल का tan theta equals to क्या होगा? Perpendicular by base. इस एंगल के हिसाब से perpendicular is BC and the base is AC. BC is perpendicular, AC is base. So BC by AC. अच्छा, BC मतलब AE from the graph AE. AE मतलब OE minus OA. OE minus OA. फिर AC मतलब OD. अच्छा, OE मतलब V, OA मतलब U, OD मतलब T, that is V minus U by T, that is acceleration. So it's an interesting one. ये MCQ में आता है. That is in a velocity time graph. In a velocity time graph, slope is acceleration. In a velocity time graph, we define slope, that is a mathematical terminology, as acceleration. When you will go in the tangent normal chapter of differential calculus of mathematics, you will learn very much thing about slope. But here we just learn that slope of velocity time graph is simply acceleration, right? So for now we have S equal to ut plus half at square. The graph will remain same. So here displacement, that is displacement after time t, is simply the area of the trapezium OABD. OABD, ये जो trapezium form हुआ, इसका area will be the displacement of that particle after time t.
राइट। अच्छा, ट्रेपीजियम नॉर्मली ऐसा होता है, इस ट्रेपीजियम को हम लोगों ने उल्टा कर दिया, सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। So we can break the trapezium as area of a rectangle OACD, OACD एक rectangle plus area of ABC, triangle ABC। ट्रेपीजियम को एक rectangle और एक triangle के हिसाब से break कर दिया। Area of the rectangle means simply length into breadth, that's why OD into OA, and triangle का half into base into height, so half into AC into BC, this one। अच्छा, OD का वैल्यू क्या है, पिक्चर देखो, स्मॉल टी। OA का वैल्यू क्या है, U, सो T इंटू यू। अच्छा, हाफ AC, AC मतलब AC जो है OD भी सेम है, दैट्स वाई स्मॉल टी। BC, BC मतलब जो प्रूव 1 में करवाया, दैट इज V माइनस यू, राइट। अब ये V माइनस यू को रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन, दैट्स वाई एक्सीलरेशन A इक्वल्स टू V माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, AT इक्वल्स टू V माइनस यू की जगह AT डाल दिया, सो T इंटू AT दैट इज AT स्क्वायर। सो एस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर फॉर एन एक्सीलरेटेड मोशन। अगर ये रिटार्डेड मोशन होता तो क्या होता फॉर्मूला, एस इक्वल टू UT माइनस हाफ AT स्क्वायर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर प्रूफ 2। Again we have a very easy proof, that is proof number 3, v square equal to u square plus 2as। पहले दो लाइन सेम है, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t दैट इज s इक्वल टू क्या था, सिंपली एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम OABD। इधर ट्रेपीजियम को ब्रेक नहीं करेंगे, ट्रेपीजियम का जो एरिया का फॉर्मूला है वही नो पुट करेंगे। ट्रेपीजियम सपोज वी कैन कंसीडर दिस एज PQRS, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू ये जो दो पैरेलल नो आर्म्स है उन दोनों का डिस्टेंस दैट इज QT और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू ये जो दो पैरेलल आर्म है उन दोनों का एडिशन। दिस वन वाज द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। सो ट्रेपीजियम का एरिया क्या था, हाफ इंटू दो पैरेलल जो साइड है उन दोनों का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज QT इंटू वो जो पैरेलल दो साइड है उन दोनों का सिंपली एडिशन QRPS, राइट। तो इधर ट्रेपीजियम क्या है OABD, इधर दो पैरेलल आर्म्स क्या है OA एंड DB। तो हाफ इंटू पहले क्या था QT दैट इज डिस्टेंस क्या है सिंपली AC, दैट्स वाई AC प्लस सॉरी इंटू दो पैरेलल साइड दैट इज OA/DB का एडिशन, राइट। अच्छा, AC का मतलब क्या है, फ्रॉम द पिक्चर इट्स स्मॉल t, OA मतलब फ्रॉम द पिक्चर इट्स U एंड DB मतलब दिस वन मतलब OE, DV और OE तो सेम है, इधर से ही तो एक डॉट डॉट लाइन गया है, दैट्स वाई DB विल बी V। फिर से एक्सेलरेशन का हेल्प लेंगे, दैट इज A इक्वल्स टू V माइनस यू बाई टी। इधर से T निकाल लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, T A की जगह नीचे A, सो T को वहाँ पर पुट कर दिया, दैट इज V माइनस यू बाई ए, और इस टर्म को पहले V फिर U लिखते हैं। तो 2A उस तरफ दैट इज 2AS, और ये क्या है A माइनस बी A प्लस बी, दैट इज सिंपली A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को उस तरफ भेज दिया, सो वी गॉट V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। दैट्स इजी वन। अगर ये डिसेलरेशन और रिटार्डेशन होता तो सिंपली क्या होता, V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2AS, राइट। सो नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स प्रूफ नंबर 4। प्रूफ नंबर 4, Sn इक्वल्स टू U प्लस A बाई 2n माइनस 1। सो ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो गया। This one is the displacement at nth time. So Sn equal to displacement after n second minus displacement after n minus 1 second. Suppose in a sum you have been asked to find the displacement of 7th second. इसका मतलब क्या है, 7 सेकेंड, 7 दिस वन, 7 सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ माइनस 6 सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ,
So this one is 7 second. If it is suppose 9th second में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? Simply the displacement of 9 second minus displacement of 8 second, right? So here it is nth time or nth second. That's why displacement after n second minus displacement after n minus 1 second. So O to n is n second. तो n minus 1 क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा, that is O to k. O n, ये जो O n है, this one is n because ये टाइम एक्सिस है, and O k n minus 1 है, right? अच्छा, O n का जो वेलोसिटी है that is m, ये तो वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल है, that's why this line nm represents velocity after n second. और ये जो n minus 1 का लाइन है that is kl, that is also parallel to velocity axis. तो वो क्या है? That is the velocity after n minus 1 second or at n minus 1 second, right? So displacement after n second में तो पार्टिकल ON इस पोजिशन में था, तो सिंपली ये एरिया कंसिडर होगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OAMN, ये जो पूरा ट्रेपेजियम है n सेकेंड में उसका एरिया माइनस एरिया ऑफ OALK, मतलब जो n minus 1 सेकेंड में जो एरिया अंडर द कर्व फॉर्म हुआ वो माइनस होगा. तो अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो सिंपली ये जो शेडेड रीजियन है दैट इज KLMN, ये पार्ट आएगा, that is the area of nth displacement, nth time displacement, right? अच्छा, तो ये जो KLMN है इसका फॉर्मूला क्या होगा? ट्रेपेजियम का हाफ KN परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फॉर्मूला क्या था? दो जो पैरेलल आर्म था उन दोनों का एडिशन, that is KL plus NM. So KN ग्राफ को देखो, कैन बी रिटन एज ON. KN मतलब ON minus OK, ON minus OK. ON क्या था? ON तो टाइम एक्सिस में है, दैट इज n. OK क्या है? n minus 1. दैट्स वाई n minus 1, दैट इज nn कट जाएगा, सिंपली 1. और ये जो nm है, nm हम क्या बोला? दिस वन इज पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस, सो दिस रिप्रेजेंट्स अ वेलोसिटी. nm इक्वल टू वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड. v इक्वल्स टू u प्लस at. सो इधर क्या होगा? u प्लस a इंटू टी मतलब n. देन आ गया KL मतलब वेलोसिटी आफ्टर n minus 1 सेकेंड. सो वेलोसिटी आफ्टर n minus 1 टाइम, दैट इज u प्लस a, टाइम की जगह n minus 1, एंड बाय द वे a इज द एक्सीलरेशन, राइट? तो बस वैल्यू पुट कर दो सिंपली लाइक दिस, u प्लस u 2u आएगा, इधर an है 2an होगा, एंड माइनस ए सिंपली 2 को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब हाफ कवर की. सो विल गेट समथिंग लाइक दिस. इसको मतलब स्टेप्स मैंने 1-2 स्टेप्स जाम किया है, अब लोग स्टेप्स पूरा करो. सो दिस वन इज द ग्राफिकल प्रूफ्स ऑफ ऑल द 4 इक्वेशंस. So guys, now we will prove those equations of motion using calculus. And my dear friend, this is going to be tough. I need full concentration in the coming 10 to 15 minutes, right? So v equal to u plus at, that will be our first calculation. So I think you have known what is instantaneous acceleration, right? And that I have described in lecture 2. So instantaneous acceleration after time t, a equals to dv by dt. So dv मतलब dt को उस तरह भेज दिया, so dv equals to a into dt. Now we will use integration. So integrating from u to v, u मतलब initial velocity, v मतलब final velocity. So इस तरह पे इंटीग्रेशन साइन, इस तरह पे इंटीग्रेशन साइन, u to v, these are called limits. u to v मतलब u is called lower limit, v is called upper limit. Okay, a to b मतलब a is called lower limit, b will be called upper limit. So u
लोअर पोजीशन में है इंटीग्रेशन साइन का, दैट इज लोअर लिमिट, और v अपर पोजीशन में है, दैट इज अपर लिमिट। सिंपल। नेक्स्ट, इधर जो लिमिट है देखो, इक्वल साइन के उस पास लिमिट चेंज हो गया। हाउ दिस कुड बी पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल बिकॉज एट u, दैट इज एट इनिशियल वेलोसिटी, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज u, तब तो टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, और we are considering that at initial velocity time is 0, that's why इधर 0, and after reaching v velocity time is t। आया समझ में? इस तरफ जो लिमिट होगा that is not necessary कि इस तरफ भी वो लिमिट होगा। you have to know organize some logic। इधर v के रिलेशन में इंटीग्रेशन है, इधर t के रिलेशन में इंटीग्रेशन है, राइट? सो u to v, u जब था तब टाइम 0, और जब v फाइनल हो गया तब टाइम इक्वल्स टू t। अच्छा, इसको इंटीग्रेशन करके ये आता है v माइनस यू। इसको आप मतलब फॉर नाउ इसको जस्ट याद रखो, क्योंकि इसका नो लॉज एंड ऑल विल बी इन क्लास 12 इंटीग्रेशन। अच्छा, a इज कांस्टेंट, तो उसको बाहर निकाल दिया, तो सिंपली 0 to t dt। इसका भी देखो, इसका तरह होगा, ये क्या हुआ v माइनस यू, तो ये क्या होगा t माइनस 0, राइट? सो u को उस तरह भेज दिया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड फॉर यूनिफॉर्म मोशन a इज कांस्टेंट। a कांस्टेंट है, इसलिए ये इंटीग्रेशन से बाहर चला गया, ये रूल से। सो दैट वन इज द प्रूफ ऑफ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सो गाइज, नेक्स्ट वी हैव आवर सेकेंड कैलकुलेशन, दैट इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब तो दिमाग घूमेगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पहले इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, अब वेलोसिटी। तो देख रहे हो कि एवरीथिंग इज रिलेटेड। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 स्टडी करना इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, आई विल गिव द लिंक ऑफ लेक्चर 1 and 2 इन द डिस्क्रिप्शन, काइंडली उसको पहले ध्यान से समझो। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी रिटन एज v इक्वल टू ds dt और ds by dt। तो dt मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज ds इक्वल टू v इंटू dt, दिस वन। अच्छा, v कैन बी रिप्लेस्ड एज, अभी अभी डिराइव किया, u प्लस ए टी, मल्टीप्लाई कर दिया u इंटू डी टी, ए टी इंटू डी टी। दिस वन इज इजी। नाउ इंटीग्रेशन स्टार्ट्स। इधर ds है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। लिमिट क्या है? 0 to s, तो 0 क्या हुआ? लोअर लिमिट, करेक्ट। s क्या हुआ? अपर लिमिट, सिंपल। तो 0 to s मतलब एक लोअर लिमिट पकड़ के अपर लिमिट तक इंटीग्रेट करेंगे। जब हम लोगों ने 0 पकड़ा है, दैट मीन्स 0 डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? नो डिस्प्लेसमेंट। तब ध्यान से सोचो, कोई टाइम एक्सपेंड होगा इन अ नॉर्मल केस? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स 0। जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो टाइम मतलब कैलकुलेट करने का क्या फ़ायदा? दैट्स वाई फॉर 0 टाइम इज 0। इधर देखो dt है, तो ये जो सारा इंटीग्रेशन है इसमें टाइम का लिमिट होगा। वी विल यूज द लिमिट्स ऑफ टाइम एट दिस साइड बिकॉज हियर इट इज dt, राइट? सो एट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0 वी यूज टाइम एज 0, बट व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज s, जब डिस्प्लेसमेंट s हो गया, देन टाइम विल डेफिनेटली इंक्रीज, and that is t, right? So at displacement 0 time is 0, and at displacement s time is t and t. So here it is integration 0 to s ds, here it is 0 to t u dt, 0 to t at dt। तो ये तो 1 की तरह सेम ही होगा, that is s minus 0। अच्छा, u इज कांस्टेंट, u को बाहर निकाल दिए तो ये सेम रहेगा, 0 to t इंटीग्रेशन dt। a इज कांस्टेंट, बाहर निकाल दिया, 0 to t t dt, इधर एक t है ऑलरेडी। सो s माइनस 0 मीन्स s u। अच्छा, इसका क्या होगा? सिंपली t माइनस 0। ये a है, ये देखो इस पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, 0 to t t इंटू डी टी। इसका हमने एक t²/2 एक सेकंड थर्ड ब्रैकेट और बाहर इसका लिमिट लिखा है। ये जो 0t लिमिट है, दिस वन इज 0, दिस वन इज t, दैट इज द
लिमिट आई हैव रिटन। सो ये कैसे हो गया, 0 to t t dt हो गया सिंपली t स्क्वायर बाई 2। ये कैसे हुआ, इसका एक फॉर्मूला है एंड दैट इज लेक्चर 1 में था x टू द पावर n dx। ये जो इंटीग्रेशन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली x n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। दिस वन इज यूज टू बी द फॉर्मूला। हेयर कोई लिमिट नहीं है, दैट्स वाई वी यूज अ c। c इज अ कांस्टेंट, अगर लिमिट होता तो c नहीं होता। सो दिस वन इज विदाउट लिमिट, दिस इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल, अगर लिमिट होगा तो क्या बोलेंगे, डेफिनिट इंटीग्रल। तो इधर जो हो रहा है दिस आर ऑल डेफिनिट इंटीग्रल। तो ये जो टी डी टी है इसको देखो x dx समझो, x dx मतलब n क्या है, n इज 1। तो n जब 1 होगा तो ये क्या होगा, 1 प्लस 1 दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस 1, राइट। ये तो सिंपली x टू द पावर n है, इधर t dt है। तो हम ये सोचते हैं कि ये x dx है, तो x dx मतलब n क्या है, n तो 1 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन x dx, x का पावर 1 है तो x टू द पावर 1 प्लस 1 2 बाई 2 प्लस c, दिस वन। इधर लिमिट है, इस पर लिमिट है, दैट्स वाई सिंपली c यूज नहीं हुआ। टी स्क्वायर बाई 2 पास में लिमिट बैठ गया 0 टू t, राइट। सो एस इक्वल टू यू टी ए, ये जो 2 है बाहर आ गया, a बाई 2। अंदर जो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर रहेगा, उसकी जगह एक बार ये जो अपर लिमिट माइनस ये लोअर लिमिट पुट करेंगे। क्या बोला, ये जो 2 है, 2 इज कांस्टेंट तो उसको बाहर निकाल दे, दैट इज a बाई 2। फिर अंदर क्या रहेगा, सिंपली टी स्क्वायर रहेगा, टी स्क्वायर रहेगा। टी स्क्वायर की जगह एक बार अपर लिमिट दैट इज t माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0 पुट करेंगे। तो अगर t की जगह t पुट करेंगे तो टी स्क्वायर ही रहेगा, सिंपल। और t की जगह 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो सिंपली 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होगा, सिंपली a बाई 2 टी स्क्वायर दैट इज हाफ a टी स्क्वायर। सो दिस वन इज द डेरिवेशन। अगर इसको समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके धीरे धीरे से देखो। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a इक्वल टू dv बाई टी dt। वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू ds बाई dt। इसको ध्यान से देखो, इसमें मतलब काफ़ी सारा ट्विस्ट है। a इक्वल टू dv बाई dt, तो हम लोगों ने क्या किया, ऐसे ds मल्टीप्लाई किया, तो सिंपली ds क्रॉस करके तो dv बाई dt मतलब वी कैन रिटर्न टू दैट टर्म। सो ds, ये जो ds बाई dt हुआ दिस वन इज v, ये वाला। सो ds dt की जगह v पुट कर दिया, और ये जो ds है नीचे उसको उस तरफ भेज दिए। सो a ds v dv आया समझ में। dv बाई dt था ऊपर नीच, ds मल्टीप्लाई किया, ds बाई dt v हो गया, ये जो ds है उस तरफ भेज दिया। सो a इंटू ds इक्वल्स टू v इंटू dv, सिंपली। अब इंटीग्रेशन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का लिमिट क्या लेंगे, इधर तो डिस्प्लेसमेंट है 0, डिस्प्लेसमेंट 0 इनिशियली 0 टू s, और ये तो v है, वेलोसिटी का है, तो वेलोसिटी इनिशियली क्या होता है, सिंपली u, एंड फाइनली क्या होता है v। सो u to v will be the limit of velocity, 0 to s will be the limit of displacement, right। अच्छा देखो 0 to s ads इंटीग्रेशन में, u to v v dv इंटीग्रेशन में, तो a will be constant। a अगर बाहर चला जाएगा तो अंदर क्या रहेगा, इंटीग्रेशन 0 to s ds, ये भी पिछले बार की तरह s माइनस 0। इधर v इज नॉट अ कांस्टेंट, तो v dv मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, x dx, जो अभी पिछले बार करवाया था, x dx मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इधर v dv मतलब v स्क्वायर बाई 2, और ये साइड में 2 लिमिट,
अपर लिमिट लोअर लिमिट, v इज द अपर लिमिट, u इज द लोअर लिमिट। तो ये होगा a इंटू एस, दिस वन इज हाफ, दैट इज 1/2, v स्क्वायर अंदर रहेगा, उसकी जगह एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, अंदर v स्क्वायर रहेगा, जो 1/2 है बाहर निकल जाएगा, दिस वन। तो एक बार v की जगह एक बार दैट इज अपर लिमिट v, एक बार लोअर लिमिट u पुट करेंगे, लेकिन मतलब कंडीशंस क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो v की जगह v पुट करेंगे तो v स्क्वायर होगा, माइनस v की जगह लोअर लिमिट दैट इज u स्क्वायर। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2as, तो इधर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को उस तरफ भेज देंगे तो क्या होगा, इट विल बी प्लस, ये माइनस u स्क्वायर था उस तरफ भेज दिए, तो u स्क्वायर प्लस 2as दैट मीन्स v स्क्वायर। सो दिस वन इज द प्रूफ, राइट। और जो इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 का प्रूफ कैलकुलस में जब हम करेंगे तो वो तो बेसिकली इक्वेशन 2 जैसा प्रूव ही होगा, राइट क्योंकि nth टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो हम लोगों ने ग्राफिकल में देखा, डिस्प्लेसमेंट एट n टाइम माइनस डिस्प्लेसमेंट एट n-1 टाइम। तो n टाइम में तो इंटीग्रेशन होगा, फिर n-1 में भी इंटीग्रेशन होगा, इसलिए वो जो 4 नंबर था उसका हम कैलकुलस प्रूफ दरकार नहीं है, मतलब वो तो सिंपली 2 के साथ मैच हो जाएगा, राइट। Now we have the equations of vertical motion. So if we consider this as a particle, if it moves in the upward direction, then it will consist few equation. ध्यान से सोचो, अगर ये अपवर्ड में जाएगा then earth will attract it towards the ground, मतलब इसका जो अर्थ का जो एट्रैक्शन होगा दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g, दिस वन, ये नीचे होगा, ये ऊपर जाएगा, एक कंडीशन। फिर अगर इसको हम ऊपर से नीचे फैलेंगे, नीचे लाइक दिस, देन अर्थ विल एक्ट टूवर्ड्स द ग्राउंड एंड इट विल गो टूवर्ड्स द ग्राउंड, मतलब इसका g और इसका जो मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में होगा, लेकिन जब इन द अपवर्ड मोशन उसका डायरेक्शन ऊपर लेकिन अर्थ का g नीचे। सो दैट्स वाई 2 केस फॉर डाउनवर्ड मोशन, ये नीचे जा रहा है फ्रॉम अ हाइट h, दिस वन इज द ग्राउंड, तो इट्स गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, दैट्स वाई प्लस g। तो v इक्वल टू u प्लस gt, h इज द हाइट, ut plus half gt square, v square equal to u square plus 2gh, and for upward motion it is going in the reverse direction of the attraction of the earth, that's why minus g. So v equal to u minus gt, h equal to ut minus half gt square, v square equal to u square minus 2gh, right? Now we will see some proof related to vertical motion. So now we have two calculations or two derivations of vertical motion, right? Number one is maximum height. That means this is the height by how much a particle can move in the upward direction. कितना maximum height हो ऊपर जाएगा, that is the calculation. For upward motion, that means ऊपर, we got this formula, v square equal to u square minus 2gh. एक चीज सोच के देखो, इफ इट गोज टू अ मैक्सिमम हाइट लाइक दिस, एट अ मैक्सिमम हाइट फॉर अ सर्टेन मोमेंट इट्स वेलोसिटी गेट 0, ये पता है ना, जब ये ऊपर जाएगा एक जो मैक्सिमम हाइट जब ये रीच करेगा तब उस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी फॉर सर्टेनली 0 हो जाता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग एट h इक्वल टू h max इज द मैक्सिमम हाइट, वी गेट v इक्वल्स टू 0, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, v की जगह 0, u 2g, h की जगह h max. So simply h max equal to u square by 2g. That means simply by knowing u को जान के you can calculate that how much a particle or a body can go. Suppose you are throwing a body say with 30 meter per second, तो u की जगह 30 meter per second पुट कर दो, 30 square by 2g, g is 9.8, तो जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द हाइट योर बॉडी और पार्टिकल विल रीच। आया समझ में? दैट मीन्स सिंपली यू को कैलकुलेट करके और यू को जस्ट पुट करके वी कैन एस्टिमेट द मैक्सिमम हाइट।
नेक्स्ट टाइम ऑफ एसेंट, दैट मीन्स ये जो ऊपर गया कितना टाइम लगा. फॉर अपवर्ड मोशन दिस वन इज द फॉर्मूला माइनस जी टी. वी आर कंसिडरिंग कि जब ये एकदम हाईएस्ट पीक पे जाएगा तब उसका वेलोसिटी 0 होगा, तो ये कितना टाइम लगेगा, कैपिटल T1. सो v की जगह 0, t की जगह कैपिटल T1, जस्ट सिंपली पुट कर दो. T1 इक्वल टू u by g, that means initial velocity by g. So by putting the value of u, you can calculate the estimate time कि मतलब कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर जाने के लिए, right? So in the next slide we will have more proofs of vertical motion. Next we have time of descent, that means वो जो maximum height से ground में आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा. So for downward motion, इधर downward motion हो जाएगा because it will fall from a height like this. So h equal to ut plus half gt square plus होगा because it's a downward motion. h equal to h max, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी जब इधर से आएगा तब तो 0 होगा, एंड t टाइम कितना लगेगा इज कैपिटल T2. सो h की जगह h max, u की जगह 0, t की जगह T2. h max का फॉर्मूला अभी क्या आया, u स्क्वायर बाई 2g. तो सिंपली कैलकुलेट करके T2 इक्वल टू u बाई जी. देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आया, मतलब इसको टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगेगा नीचे आने के लिए उतना ही टाइम लगेगा. सो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, राइट. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना टाइम हो ऐसे ऊपर नीच कितना टाइम. सो u बाई जी और पिछले बार में u बाई जी, तो दोनों u बाई जी को ऐड करेंगे तो 2u बाई जी. दैट मीन्स ये टोटल टाइम वो सिंपली फ्लाइट करता रहेगा, ऊपर u बाई जी नीचे u बाई जी, राइट. सो नेक्स्ट वी विल हैव आवर नेक्स्ट प्रूफ. सो वी हैव आवर नेक्स्ट टू कैलकुलेशंस. वेलोसिटी लिविंग इन द ग्राउंड, जब मतलब जब वो ग्राउंड को छोड़ा तब क्या वेलोसिटी था, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी. सो वी गॉट h max इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g. सिंपली 2g को उस तरफ भेज दिया, यहाँ पर स्क्वायर था रूट कर दिया. सो दिस वन इज द इनिशियल वेलोसिटी बिफोर लिविंग द ग्राउंड, राइट. सो पॉइंट नंबर 5, वेलोसिटी टचिंग द ग्राउंड, किस वेलोसिटी में वो ग्राउंड को टच करेगा. v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g h, क्योंकि वो डाउनवर्ड मोशन है. u मतलब ऊपर तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दैट्स वाई u 0, और h मतलब कितना हाइट से वो फॉल हुआ, दैट इज मैक्सिमम हाइट. तो 2g h max और v क्या हो जाएगा, सिंपली रूट ओवर 2g h max. एक चीज देखो, u एंड v इज सेम, दैट मीन्स जो हाइट से वो ग्राउंड को लीव करेगा उसी हाइट में वो ग्राउंड को रीच भी करेगा, राइट. सो दिस टू आर द एक्स्ट्रा इक्वेशंस, एक्स्ट्रा प्रूफ्स ऑफ वर्टिकल मोशन. So guys, that's all from today's session. I hope you have gained some knowledge from all these 3 topics. And if you feel any doubt regarding the whole concept, do message me on Instagram. I will give my link in the description below, or you can comment in the comment section, right? And if it helps, this video helps, gives a thumbs up. Do subscribe. And lecture 3 आज के लिए खत्म. We will meet soon in the next lecture. तब तक चलते हैं हम. नमस्कार, टाटा, बाय बाय.